next topic, that is 3.4, addressing modes. Okay. So what is addressing mode? Ways of specifying operand for an instruction are called addressing modes. One instruction can have more than one addressing mode. Okay. We already studied that whenever we are writing a program for performing any task, that program is nothing but set of instructions. Okay. If we will take one instruction from that program, that instruction is having two parts. One part is opcode, which will indicate what type of operation to be performed, and the second part, that is operand, on what value that operation to be performed. Okay. Now in that operand portion, okay, there are many ways for specifying where this operand is stored. This operand may be stored in registers, may be stored in main memory, okay, on certain address, and that the itself, the value given there itself may be the operand. Okay, that operand may be the result of certain previous operation. So there are many ways by which we can specify where the operand we want to fetch for performing this particular operation on that operand is where the operand is stored. Okay, so there are different ways by which we can specify the operand on that operand field, and that ways or then methods are called addressing modes. Okay, so there are total there are actually more than 5, but we will consider 5 here according to your syllabus. So there are different 5 addressing modes, or ultimately we can say there are 5 ways in which we can specify operand in instruction. Okay, so there are 5 addressing mode. The first is implied addressing mode, register addressing mode, immediate addressing mode, direct addressing mode, and indirect addressing mode. We will learn one by one. The very first is implied addressing mode. Implied addressing mode means this is a way of specifying operand, means it will indicate where the operand is stored. So very interesting addressing mode, does not use any register or memory location. Means whenever we are using implied addressing mode, the our operand is neither stored in register neither in memory. मीन्स हमारी रैम है उसमें भी वो ऑपरेंड स्टोर नहीं है और किसी रजिस्टर में भी वो स्टोर किया हुआ नहीं है, तो फिर कहाँ पे स्टोर होगा? एड्रेस इज इम्प्लाइड बाय फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। मीन्स अब जो इंस्ट्रक्शन देखेंगे, जो हमारा ऑपकोड वाला पोर्शन होगा, उसको देख के ही पता चल जाएगा कि ये ऑपरेंड कहाँ से लेना है। कहाँ से लेना है मतलब रजिस्टर्स पे नहीं लेना है, इसे मेमोरी में से भी नहीं लेना, तो फिर कहाँ से लेना है? तो वो ऑपरेंड क्या होगा कि जनरली फ्लैग होगा. we know that we are having flag register in every processor, okay, which is useful for setting certain conditions. सपोज कैरी आई पिछले कुछ एग्जीक्यूशन में एडिशन हुआ तो कैरी आई तो वो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, वो रिजल्ट जीरो आया तो जीरो फ्लैग सेट हो गया, फिर उसमें नंबर ऑफ वंस इवन आया तो पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा. ओके, बीसीडी ऑपरेशन है तो थर्ड बिट से फोर्थ बिट की तरफ कैरी आई तो ऑक्सिलरी कैरी बिट सेट हो जाएगा. रिजल्ट नेगेटिव आया तो साइन फ्लैग सेट हो जाएगा. तो वो फ्लैग वैल्यूज़ में कुछ हमें अपडेट करना है. तो हमारा ऑपरेंड किसी रजिस्टर में स्टोर नहीं है, किसी मेमोरी में भी नहीं है. हमारा जो पिछला कुछ रिजल्ट आया है उसमें सपोज कोई फ्लैग वैल्यू सेट है, उसे कुछ चेंज करना है, या हमारा जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट को ही हमें कुछ अपडेट करना है. और बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में. तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ही हमें कुछ मैनिपुलेट करना है. कोई दूसरे रजिस्टर में या किसी मेमोरी में से जो कंटेंट है वो वहाँ पे ऑपरेंड है, उस पर कुछ ऑपरेशन नहीं करना है. हमें ये जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट में ही कुछ हमें वापस से ऑपरेशन करना है, या फिर उसने जो कंडीशन सेट करके रखी किसी फ्लैग में वो फ्लैग को अपडेट करता है. ओके, तो उस टाइम पे हम ऑपरेंड स्पेसिफाई ही नहीं करेंगे, सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे. इंस्ट्रक्शन मतलब कि वो ऑपकोड पोर्शन ही लिखेंगे हम, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑपरेंड कहाँ से रहता है. ओके, और ऐसा यदि ऐसे हम यूज़ कर रहे हैं कि वी आर नॉट स्पेसिफाइंग ऑपरेंड. ओके, इंस्ट्रक्शंस का जो ऑपकोड पोर्शन है दैट इटसेल्फ इज अ स्पेसिफाइंग ऑपरेंड, देन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड. Okay, so look at this example. CMC is opcode for indicating complement carry. मीन्स हमारा जो कैरी फ्लैग है उसे कॉम्प्लीमेंट कर दो, वो अभी सेट हो तो रीसेट कर दो, रीसेट हो तो सेट कर दो, जो भी है उसे कॉम्प्लीमेंट कर दो. अनदर इज STC, सेट कैरी फ्लैग. अभी जो भी वैल्यू हो वी डोंट केयर, उसे 1 कर दो, सेट कर दो. कैरी फ्लैग की वैल्यू जो भी है उसे 1 करो, 1 है तो 1 रखो, 0 है तो 1 कर दो. ओके, या फिर हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करना हो, ऐसे कुछ ऑपरेशन रहेगा तो वी विल नॉट स्पेसिफाई ऑपरेंड आइदर इन रजिस्टर और मेमोरी. द इंस्ट्रक्शन का जो ऑपकोड है दैट विल इटसेल्फ विल स्पेसिफाई ऑपरेंड, एंड देन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड. ओके, अनदर एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड.
Very simple. Name itself is a register addressing mode. This addressing mode specifies operands using register only. हमारा जो ऑपरेंड है वो कहाँ से फेच करना है, रजिस्टर में से फेच करना है, किसी रजिस्टर में स्टोर करके रखना है. ओके. फास्टर इन एग्जीक्यूशन बिकॉज ऑपरेंड इज अवेलेबल इन रजिस्टर. ओके, ये एड्रेसिंग मोड सबसे फास्ट रहेगा. मीन्स जिस भी इंस्ट्रक्शन में हमने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज़ करा है वो इंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होगा. क्यों? क्योंकि हमें ऑपरेंड रजिस्टर में से लेना है और हमें पता है कि रजिस्टर प्रोसेस के अंदर ही होते हैं, ALU के बाजू में, तो फट से वहाँ से ले लेगा, तो ये इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट जल्दी हो जाए क्योंकि ऑपरेंड उसे तुरंत ही मिल जाएगा. ओके. डू नॉट नीड टू रिफर एनी मेमोरी लोकेशन, क्योंकि रजिस्टर में ही कंटेंट है तो प्रोसेसर बाहर जाके मेमोरी में से कोई सर्च करने की जरूरत ही नहीं है. ओके. एग्जाम्पल ऑफ सच एड्रेसिंग मोड इज मूव A, B. मीन्स हमें B रजिस्टर के कंटेंट एक्यूमुलेटर के रजिस्टर में कॉपी कर देना है. तो दोनों रजिस्टर बाजू में ही पड़े हैं प्रोसेसर के, तो वहाँ से फट से इसमें से लेके इसमें कर देगा. ओके. सो A एंड B इज अ रजिस्टर. मीन्स हमारा ऑपकोड A, MOV, ये हमारे दो ऑपरेंड है A और B, एंड दीज आर द नेम ऑफ रजिस्टर. ओके. So content of register B is moved to A, that is accumulator, and content of B remains unchanged. Means copy paste. Okay, not a cut paste. B में से कॉपी करके A में डाल दीजिए, B में वही का वही रहेगा, वो कट नहीं हो जाएगा वहाँ से. Okay. Another addressing mode is immediate addressing mode. Stores data immediately after the opcode in memory. It can be 2 byte or 3 byte instruction. Means हम किसी एड्रेस का नाम यूज़ नहीं करेंगे ऑपरेंड स्पेसिफाई करने के लिए, कोई मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भी यूज़ नहीं करेंगे, हम इम्प्लाइड भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम ऑपरेंड तो स्पेसिफाई करना है, वो ऑपकोड है वो स्पेसिफाई नहीं करेगा, अलग से ऑपरेंड देना है. तो क्या करेंगे, हम अलग से कोई डायरेक्ट वैल्यू ही दे देंगे. जैसे ऑपकोड लेंगे उसका तुरंत ही वैल्यू दे देंगे. सपोज कुछ भी लिख दिया 32, तो 32 वो ऑपरेंड हो जाएगा. वो किसी रजिस्टर का नाम भी नहीं है, कोई मेमोरी का एड्रेस भी नहीं है, और 32 है वही ऑपरेंड. दैट वैल्यू इटसेल्फ इज ऑपरेंड. तो ऐसे हम स्पेसिफाई करते हैं ऑपरेंड, सो दैट एड्रेसिंग मोड बिकम्स इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. ओके. लुक एट दिस एग्जांपल, MVI A32H. तो हमारा ऑपकोड है MVI. ओके. और 32H जो हमारा रहेगा वो हमारा ऑपरेंड है. मीन्स 32H ये वैल्यू रहेगी, यही ऑपरेंड रहेगा, इसे हमें A रजिस्टर में अंदर इंसर्ट कर देना है. ओके. अभी कोई बोलेगा कि यहाँ पे तो सर A रजिस्टर का नाम है, but A is a system register accumulator. Okay, and of course we can use more than one addressing mode within a one instruction. Okay, तो ये 32H है, that is immediate value, जो वैल्यू डायरेक्ट दे दी है. इमीडिएट क्यों? क्योंकि ये जैसे ऑपकोड खत्म हुआ, डायरेक्ट वैल्यू, यहाँ पे कोई रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस नहीं है. ओके. अनदर एग्जांपल LXI है 3050H. यहाँ पे 3050H इज ऑपरेंड. यही 3050 यही वैल्यू है, हमें HL रजिस्टर पेयर में डाल देना है. ये 16 बिट की वैल्यू है, जो कि 32H वाले में 8 बिट की वैल्यू है. ओके. एंड वी नो दैट MVI इज यूजफुल फॉर स्टोरिंग 8 बिट कंटेंट इन रजिस्टर, एंड LXI इज यूजफुल फॉर स्टोरिंग 16 बिट रजिस्टर इन रजिस्टर पेयर, दैट इज H and L. ओके. नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आए तो, या नेक्स्ट इसके बाद रहेगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ये दोनों एड्रेसिंग मोड को हम मेमोरी एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हैं. मीन्स अब हम ऑपरेंड लाएंगे मेन मेमोरी में से. अभी हम रजिस्टर में से भी नहीं लेंगे, कोई डायरेक्ट वैल्यू इमीडिएट वैल्यू भी नहीं दे देंगे, उसमें ऑपरेंड बिना स्पेसिफाई किया हुआ ऐसा भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा. अब हम ऑपरेंड देंगे, लेकिन ऑपरेंड वहाँ हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, मेन मेमोरी में, और वो मेन मेमोरी में जहाँ पे स्टोर है वो एड्रेस हम रखेंगे हमारे ऑपरेंड वाले पोर्शन में. ये एड्रेस पे जाओ, वहाँ से ऑपरेंड लेके आओ. ओके. सो मेमोरी में जब हमारा ऑपरेंड स्टोर होता है तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास दो वे है. वन वे इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड वन अनदर वे इज इनडायरेक्ट. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज डायरेक्टली गिवन विद इन इंस्ट्रक्शन. ओके. इट इज़ जनरली 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. 1 बाइट हमारा ऑपकोड स्टोर करेगा, बाकी के 2 बाइट है वो मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेंगे कि ये मेमोरी एड्रेस पे ऑपरेंड पड़ा है. फर्स्ट बाइट स्टोर्स ऑपकोड, सेकंड एंड थर्ड बाइट स्टोर्स एड्रेस ऑफ ऑपरेंड. And look at this example, LDA 3050H. LDA means load into accumulator, और 3050H ये हमारा एड्रेस है. अभी हमारा इमीडिएट वैल्यू नहीं है, 3050 ये हमारा ऑपरेंड नहीं है. दिस इज आवर एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑपरेंड इज स्टोर्ड. हमें मेमोरी में जाना है, वहाँ पे 3050 एड्रेस को विजिट करना है, और वो एड्रेस पे जो ऑपरेंड पड़ा है वो ऑपरेंड उठा के हमें accumulator के अंदर लोड कर देना है. ओके. सो लुक एट दिस एग्जांपल यहाँ पे. ओके. सपोज ओके ये एग्जांपल इनडायरेक्ट का, बट वी कैन लर्न इन दिस वे. सपोज यहाँ पे देखेंगे LDA 3050H
अब हम मेमोरी में जाएंगे 305 रहे एड्रेस पे और वहाँ से हमें ऑपरेंड मिल जाएगा, वो ऑपरेंड उठा के हम एक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे। तो यहाँ से जो एड्रेस मिला सिर्फ वही एड्रेस पे जाना है और वहाँ से हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग है। ओके, मीन्स हमें किसी सोसाइटी में कोई घर ढूंढने जाना है, कोई बोले कि मकान नंबर 450 में चले जाओ, 450 में जाएंगे, वहाँ पे हमारा जिनको मिलना है वो मिल जाएंगे, तो बोले कि डायरेक्ट एड्रेस मिला हमें। ओके, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, इट इज़ अगेन मेमोरी एड्रेसिंग मोड, मीन्स ऑपरेंड हमारा मेमोरी में ही रहेगा, लेकिन हमें जो एड्रेस दिया रहेगा वो एड्रेस पे ऑपरेंड नहीं मिलेगा, वहाँ से एक और एड्रेस मिलेगा और वो एड्रेस पे हम जाएंगे तो वहाँ पे ऑपरेंड मिलेगा। अब मेमोरी में जाएंगे एक एड्रेस पे, फिर वहाँ से दूसरा एड्रेस, फिर वहाँ से ऑपरेंड मिलेगा, वाया वाया जाना पड़ेगा। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। बट जब हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो हमारा एक पार्ट रहेगा ऑपकोड, दूसरा पार्ट रहेगा ऑपरेंड, तो वहाँ पे हम एड्रेस नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम एक जनरली रजिस्टर का नाम लिखेंगे, रजिस्टर पेयर का नाम लिखेंगे, क्योंकि 16 बिट का एड्रेस हम पहले किसी एक रजिस्टर में स्टोर करके रखेंगे और वो रजिस्टर 16 बिट की जो पेयर बनेगी रजिस्टर की उसका नाम लिखेंगे, और फिर वो रजिस्टर में हम जाएंगे, वहाँ से एड्रेस लेंगे, फिर एड्रेस वो एड्रेस पे मेमोरी में जाएंगे और वहाँ से ऑपरेंड लेंगे वाया वाया। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड एड्रेसिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाइज एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इनडायरेक्टली इनटू रजिस्टर पेयर. Further, register pair contains address of memory location and that memory location has an operand. So look at this example, MOV A, M means हमें मूव करना है एक्यूमुलेटर में M के कंटेंट। अब M तो हमारा क्या है, एक रजिस्टर पेयर है। अब कीप इन माइंड, हमारे आज तक जितने भी प्रोसेसर पढ़े 8085 कहीं पे भी M नाम का कोई रजिस्टर नहीं था। जब भी M लिखा हो तो हमें उसे समझना है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और जनरली मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हमारा जो HL पेयर रहती है रजिस्टर की उसे हम इंडिकेट करेंगे M से। जब भी हम ऐसे लिखे M, मतलब ये M नाम का कोई रजिस्टर तो है नहीं, तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हुआ नहीं। ये M नाम का रजिस्टर मतलब अल्टीमेटली बता रहे कि HL पेयर में जाओ, तो हम जाएंगे HL पेयर में। अब HL पेयर से हमें ऑपरेंड नहीं मिलेगा, यहाँ से एड्रेस मिलेगा मेमोरी का कि 2005, फिर हम मेमोरी में जाएंगे 2005 एड्रेस पे और वहाँ से हमें ऑपरेंड मिलेगा। तो ये ऑपरेंड को उठा के हम एक्यूमुलेटर में मूव कर देंगे। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा MOV A, M, तो M मतलब HL पेयर में गए, तो वहाँ से ऑपरेंड नहीं मिला, वहाँ से एक एड्रेस मिला, तो फिर हम यहाँ पे गए और फिर यहाँ से जो ऑपरेंड वैल्यू मिली उस वैल्यू को हम एग्जीक्यूशन के लिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे मूव करना है तो मूव कर देंगे एक्यूमुलेटर। तो हम वाया गए, दैट इज मोड, इट इज़ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, सो दैट्स इट अबाउट एड्रेसिंग मोड।